सीबीआई क्यों सुत्ती पई है? 1984 ਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 61 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ 36 ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਤੇ 25 ਕੋ-ਆਪਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਅਜੈ ਮਾਕਨ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ AICC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ AICC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 24 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 85ਵੇਂ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अमिताभ बच्चन, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, सज्जन कुमार, HKL भगत और भी इस धर्मदास शास्त्री, ये उस पहली लाइन का कातिलों में से सरदार है। पढ़ा लिखा होने के कारण इसी ने सारी उस योजना को आगे बढ़ाया है। भारत सरकार के संविधान में एक 120B की धारा है। सरदार केर सिंह को फांसी उस 120B के तहत दी गई, जबकि उसमें आज तक कोई ऐसा नहीं। और इसने कितने कत्ल करवाए, पर क्या भारत सरकार की कोई सी भी सरकार जो आती है ना वो संविधान को मान रही है,
ना इस देश की जनता के रखवाली का ख्याल है, ना किसी के धर्म का ख्याल है, ना किसी की इज्जत और रक्षा का ख्याल है, चाहे कोई सी भी सरकार आए। 120 में जब एक आदमी को फांसी दी जा सकती है, और देखो सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं हमारा न्याय का घर है, उन्होंने एक चीज लागू कर दी कि इस फैसले की नजीर, जबकि हिंदुस्तान में सारे फैसले नजीर से होते हैं, इसकी नजीर नहीं दी जा सकती। कहां जाएं? आज अगर कोई हमारे बच्चे इस दुख से पीड़ित होकर कुछ काम करते, कोई बात करते हैं, वो तो फर्जंदी से पकड़ के बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन ये हजार कत्ल करवाने के बाद ये फिर खुलेआम आजाद घूम रहे हैं और सरकारों का आनंद मान रहे हैं। इन्होंने वैसे कहते हैं हमने निकाल दिया था, लेकिन इन्होंने कभी निकाला नहीं है, अंदर खाते उसको अपनी गोद में बिठा रखा है। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ AICC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ 'ਚ 84 ਤੇ ਨਰਸਿੰਘਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ बीजेपी 2 सीटा ਤੇ रह गई सी। लेकिन फैक्ट ये है कि ये हिंदुस्तान के इतिहास पे काला धब्बा है। कहते हैं लोगों की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने गली गली कॉलोनियों की कॉलोनियां लोगों के कत्ल किए, रेप किए। दुनिया के नक्शे पे एक विडो कॉलोनी है जिसे तिलक विहार कहा जाता है, और वो कॉलोनी बसाने वाले हिंदुस्तान के सरकार राजीव गांधी, राहुल के पिता और कांग्रेस सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंदिरा गांधी महात्मा गांधी से बड़ी लीडर थी? अगर नथुराम गॉडसे ने उसका कत्ल किया तो क्यों नहीं उसकी जात बरादरी का कत्लेआम हुआ? ये एक सोची समझी साजिश के अधीन हमारे कत्ल किए गए और पूरे हिंदुस्तान में ये कत्ल हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने साल बीतने के बाद हमें इंसाफ के लिए आज भी सड़कों पे निकलना पड़ता है, और महिमा मंडल किया गया कातलों का। ये कहा गया यहां से पास में ही इंडिया गेट पे राजीव गांधी द्वारा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये धरती तब क्यों नहीं हिली जब महात्मा गांधी गिरे थे? मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस और गांधी परिवार के जो राज ये सज्जन टाइटलर जैसों के साथ है, और जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है रहा है पहले वो कमलनाथ, इनको आज तक हाथ क्यों नहीं डाला गया? आज राहुल सड़कों पे निकले हैं, 100 दिन से ज्यादा यात्रा की है, भारत जोड़ने निकले हैं। ये भारत जोड़ने के लिए आप गए हैं कि भारत को तोड़ने के लिए गए हैं? क्या सज्जन कुमार और ये जो जगदीश टाइटलर तुम्हारा पोस्टर बॉय है? मैं समझता हूं कि इसको इमीडिएट इस कमेटी से बाहर किया जाए और कांग्रेस से बाहर किया जाए। याद करो 2009 जब सज्जन और टाइटलर की टिकटें हम ही ने कटवाई थी, किस तरीके से पूरी कौम लड़ी थी। आज हमारे में हमारे जर्नलिस्ट नहीं है जिन्होंने होम मिनिस्टर को जूता मारा था, जर्नैल सिंह। मैं समझता हूँ कि हर एक उस शख्स की कंट्रीब्यूशन और हमारी लीगल टीम, चाहे सोडी साहब हो, फुल्का साहब हो, ये भूलनी नहीं चाहिए कि कितनी बड़ी एक लीगल टीम इसके ऊपर इतनी सालों से लड़ाई कर रही है, और कभी सबूतों को ठीक ढंग से पेश नहीं होने दिया। मैं गवर्नमेंट को यह कहना चाहता हूं, सीबीआई सो रही है,
सीबीआई के पास केस है। सीबीआई को पता है कि जो मेन गवाह थे जगदीश टाइटलर ने उनको वीजा लगवा के कनाडा भेज दिया। 5 करोड़ रुपया जो ट्रांसफर हुआ था वो आज भी कनाडा के एक अकाउंट में सील पड़ा है जो जगदीश टाइटलर ने भेजा था। 50 लाख रुपया कैश यहां पे दिया था और गवाह खरीदने में, बेचने में और उनके ऊपर प्रेशर डालने में पूरा काम जगदीश टाइटलर ने किया। मैंने वो स्टिंग जारी किया जो सीबीआई के पास है, जिसमें बोल रहा है कि 100 सिख मार दिए तो क्या हो गया। आज तक मेरे पे तो जगदीश टाइटलर की एफआईआर हो गई, ये आज क्यों खुला घूम रहा है। मोदी साहब तुसी कहते हो सबका विकास सबका साथ, ये साथ है साडा, ये तुहाडी सीबीआई क्यों सुत्ती पई है। जे 2 बारी कांग्रेस ने राज क्लीन चिट दी, एक बारी बीजेपी राज भी इसनूं क्लीन चिट दी गई। मैं पूछना चाहता वा वो किहड़े अफसर ने, वो किहड़ा तंत्र मंत्र है जिन्हां ने इसनूं बचाउण दी अज तक कोशिश की है। एक गल होर साझी करदा इतिहास दी, जदों 84 दे नरसिंघार दंगे होए ਉਹਦੇ बाद वेद बरवा कमिशन ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। वेद बरवा जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे ने, उन्होंने कमेटी बनी सी कि जदों 100 नंबर डायल करते हो ਉਹਦੇ बाद की कार्रवाई हुई। 100 नंबर डायल होने तो बाद किहड़ी जगह ते ड्यूटियां लगियां, किहड़े थाने की पुलिस गई और वो सारा रिकॉर्ड जो चेक किया जाए ताकि जिथे पुलिस की कुताही है उन्हां ते एक्शन होना चाहिए। लेकिन वो वेद बरवा कमिशन को राजीव गांधी ने विच ही बंद करता सीगा। क्यों? क्योंकि पुलिस ने हुक्म बनने सीगे उस वेले दे सरबरा, उस वेले दे राजे राजीव गांधी दे। मैं समझदा ये इन्ना वड्डा गुंजल है। जे मोदी साहब सबका विकास और सबका साथ चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले इंसाफ देने की बात करें। और अगर आपने नहीं दिया, ये हम जो खड़े हैं ना, जैसे हमारे कातिल HKL भगत नेचुरल डेथ चले गया, धर्मदास शास्त्री नेचुरल डेथ चले गया, इनके ऊपर शिकंजा नहीं कर सका इंसाफ का क्योंकि सरकारें मिली हुई थी। मैं समझता हूं कि हम रहे ना रहे लेकिन ये कौम ने कभी अपने कातिल नहीं छोड़े, अपने दुश्मन नहीं छोड़े। दुश्मन की बात मैं आज तब कर रहा हूं कि अगर 19 साल बाद जाके मारना पड़ा था ना जनरल डायर को, तो वो भी शहीद ऊधम सिंह ने मारा था। ये कौम कभी अपना बदला नहीं छोड़ेगी। हम 1 रहे, 2 रहे, हम 2% से कम आधे % पे आ जाए लेकिन अपना हम उसको नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारे कत्ल किए हैं। आज तुसी अखंड भारत की गल करते हो। मैं पूछना चाहना कि महाराजा रणजीत सिंह का राज अगर दर्रे खैबर जिथों मुगलों ने हमला करके हिंदुस्तान लुटिया, बहु बेटियां नूं नीलाम किया बर्फ बुखारा दे बाजारां दे विच, सोमनाथ मंदिर ढा के उहदे दरवाजे कट के लै गए, अगर कोई वापस लैके आया सी महाराजा रणजीत सिंह जिहड़ा सिर्फ उन्होंने अपना दस्तखत करना नहीं आता सी, जिस दिन शाह जबान सी शायद वो राजे का नाम अफगान राजे नूं जदों हराया ते उहदे नाल जिहड़ियां शर्तां तय होईयां, सब तो पहले महाराजा रणजीत सिंह ने शर्त रखी 800 साल पहले ਜਿਹੜੇ दरवाजे तुसी लैके गए सीगे सोमनाथ मंदिर दे वो साडे हवाले कीते जाण, ਜਿਹੜੇ एक मस्जिद दे विच लगे सी। अज भी जाके देख लो वो दरवाजे दरबार साहब च लगे ने क्योंकि उस वेले सोमनाथ मंदिर नहीं सी, मुसलमानां ने ढा दिता सी, मुगलों ने ढा दिता सी। मैं समझदा ये कौम नूं अपने बदले लैणे आंदे ने, छड्डांगे असीं भी नहीं। और ये सेंटर दी सरकार नूं भी समझ होनी चाहिदी है कि ਜਿਹੜੇ अफसर इस नूं बचाना चाह रहे ने उन्हां ते एक्शन होना चाहिए, नहीं तो साडे इसे तरीके का प्रोटेस्ट भी रहणगे। और मुल्क दे विच एक गल होर मैं नोटिस करा, हुणे दिल्ली च देखिया ना वेस्ट दिल्ली चो खालिस्तान लिखिया सड़क दे उत्ते, ओहदे च बच्चे अरेस्ट होए 2। मैं समझदा कि बाहर बैठे जेडे ISI दे एजेंट ने उन्होंने बच्चों को खराब किया, उन्होंने बच्चों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन वो बच्चे इस करके ISI के शिकंजे फस जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि असीं अज भी अपने इंसाफ नहीं। और उस विडो कॉलोनी चो बच्चे ने जिन्हों के माँ प्यो को मारिया गया सीगा, ये सरकार को समझना पएगा। अगर इसका क्लोजर ना किया, ये जो नतीजे ने उन्होंने साडे लिए चंगे होणगे, ना मुल्क लिए चंगे होणगे ना। जागो पार्टी ने प्रोग्राम किया 24 अकबर रोड कांग्रेस दफ्तर ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਦੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ।
तो नाल सिक्खां नूं इंसाफ दिता जाए। वाहिगुरू जी का खालसा। अरे पीछे से भी चढ़ जाओ, एक ही बात है, आगे से जगदीश टाइटलर, जगदीश टाइटलर, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जगदीश टाइटलर, जगदीश टाइटलर, क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग है कि जगदीश टाइटलर को पार्टी से बाहर किया जाए। राहुल गांधी किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं? हमारी डिमांड है मोदी जो है उसकी सीबीआई क्या कर रही है? आज तक सीबीआई ने इसको पकड़ा क्यों नहीं? तो हमारी डिमांड है मोदी साहब से भी कि इसको जल्दी जेल में भेजा जाए। लेकिन और नहीं तो 120 धारा के 120B के तहत उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया जाए, जिससे ये और बाकी गवाहों को न खरीद पाए। आप जी इस सब कुछ बारे की कहते हो? कमेंट करके जरूर दस्सिओ। चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।